A very good morning and Jai Hind to one and all. Students, till now we have completed 4 chapters of our book. The chapter number first is knowing our numbers, second playing with numbers, third one is HCF and LCM, and the fourth one is natural numbers and whole numbers. Okay, so all the topics of these chapters has been covered in the videos, and we have completed 11 practice questions based on these chapters. Okay, 11 practice sets has been covered. Okay, now what we will do, we will start the exercises of this book. Okay, so let's get started with the first chapter, knowing our numbers. The name of the chapter, knowing our numbers, as you already know, you have already studied this place value, ascending, descending, number system, larger number, smaller number, Indian system and international system. Okay, these were the topics of chapter number first. So what we'll do, we'll start with exercise 1.1. You have to write this exercise in your fair copy. Okay, after completing that practice sets. Okay, so let's get started. Exercise 1.1, page number 5, question number first. The question number first is, write the following numbers in words. Okay, this is very easy, students. I will just explain you here. You have to do by your own in your copy. Okay, as this topics has been already covered in my videos. Okay, so I will just explain you how to solve it. You will solve it yourself. The first question is, write the following numbers in words. You have to read this number and write this number in words. Okay, you know how to write. Just count ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. That means 34 lakh 56,809. You have to write this number in the form of words. Okay, I think it's very easy. We have already done this type of question, so you can do it easily. Okay, now question number second, write each of the following in expanded form. Expanded form, you already know how to write in expanded form. See, you have to make place value chart. For that you should know what is the place value of 1, 5, 4, 2 and 7. And like this, you have to write like this. 7 multiplied by 10000 plus 2 multiplied by 100, then plus 4 multiplied by 100, then 5 multiplied by 10 and then 1. That means the place value of that number and multiplied that number by that place value. Okay, that this is how we write any number in expanded form. Okay, write each of the following in international system of numeration. We have already learned about international system and Indian system of numeration. You can easily write and put commas over there. Okay, so question number third and fourth is easy. Just solve it. Now question number fourth is also easy. We have to write this number in Indian system of numeration. Okay, and also in words. Okay, so just write, convert this number into Indian system. That means put commas and then write the number in words. Okay, now question number 5 is, write the successor of each of the following. Okay, we have to write successor. So students, in successor what we'll do, we add 1 to the number. If this is the number, we have to add 1 to this number and then write our answer. That answer will be the successor of this number. Similarly, in this one also, we have to add 1 and write the answer. Again add 1, add. Okay, we have to add 1 in this question. So it's easy, you can do it. We have already done this type of questions. As some of you are asking about the exercise of the book, that's why we are solving this. Now question number 6, write the predecessor. Predecessor, what we'll do in this question, we will subtract 1 from each of them. Okay, in predecessor we subtract by 1, in successor we add. Okay, now question number 7, find the greatest and smallest number in the following set of numbers. Here are some sets of numbers given. Suppose in this first question 4 numbers are given. We have to identify the greatest number and the smallest number. Okay, so you will write this set, write greatest number equal to, जो भी greatest number है वो आप यहाँ लिख लेंगे, then नीचे वाली लाइन में smallest number और smallest number लिख लेंगे. Okay, it's very easy.
आप इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 8, मेक द स्मॉलेस्ट पॉसिबल 6 डिजिट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट ओनली वंस। आपको स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाना है स्टूडेंट्स। ओके, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट बनाना है तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले आप सबसे छोटा नंबर लेंगे, देन उससे बड़ा, देन बड़ा, एंड देन, मतलब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स लेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 9, मेक द ग्रेटेस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट में आप क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, देन उससे छोटा, देन छोटा, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे। Okay students, is it clear? Now question number 10, we have to compare these number. आपको compare करके बताना है which one is greater and put the sign. You can do it easily. Now question number 11, write each of the following as numerals. इसमें आपको numerals में लिखना है, इसको read करना है और उसको number के form में comma लगा के लिखना है चारों parts में. And write the following numbers in standard form. Standard form में लिखना है, देखिए बहुत easy है, expanded form में दिया है, आपको standard form में लिखना है। जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया था, 2 में हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना था, ठीक है, नंबर से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। यहाँ पे स्टैंडर्ड एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है और इसको हमको रीड करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यू कैन डू इट इजीली, ठीक है। इस टाइप की क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम कर चुके हैं, तो ये मैं आपको सॉल्व नहीं करवा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आंसर की आपसे शेयर कर लूंगी, आप इसमें चेक कर लीजिएगा आपके कितने सही है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, तो फेयर कॉपी में आपका एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हो जानी चाहिए। ओके, नाउ लेट्स कम टू एक्सरसाइज नंबर 1.2। ओके, this exercise is new as this topic is, you are familiar with this topic, you have already studied in your class 5th about the estimation, about the rounding a number, rounding of a number, ठीक है, जिसमें हम एक नंबर का को एस्टिमेट करते हैं, ठीक है, उसके नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 तक हम उस नंबर को एस्टिमेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर है 12, ठीक है, अब 12 नंबर है और 12 नंबर को मैं आपको बोलूं कि वो किसके नियरेस्ट है। 12 नंबर 10 से ज्यादा नियर है या 20 से ज्यादा नियर है, तो आप उसका डिफरेंस देखते हैं, तो आप बोलोगे 12 नंबर जो है वो 10 से ज्यादा पास है, तो 12 का एस्टिमेट करके 10 हम लिखेंगे, ठीक है। तो इसी में हमको राउंड ऑफ करके लिखना पड़ता है स्टूडेंट्स, वो एक्सरसाइज मैं आपको करवा देती हूँ क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा न्यू है, तो ये इसकी एक्सरसाइज में आपको करवा रही हूँ, एक्सरसाइज 1.2। ओके, सो विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2, 1.1 you have to do by your own. Okay, it's very easy exercise, we have already done those type of questions, you can easily do it. Now exercise 1.2, question number first, round each of the following numbers to the nearest 10, ठीक है, हमको ये सारे नंबर को स्टूडेंट्स नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो राउंड ऑफ मतलब नियरेस्ट 10 में हम क्या करते हैं, हम 2 नंबर्स को ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 47 हमारे पास नंबर है, ठीक है, अब हमें इसे राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 के, तो मुझे बताइए, नियरेस्ट 10 बोल दिया ना स्टूडेंट्स, 10 मतलब होता है 2 डिजिट, ठीक है। अब 2 डिजिट का नंबर इसके सबसे पास वाला कौन सा होगा, देखिए 47 किस किस के बीच में होगा, 40 और 50 के बीच में, ठीक है। अब एक इमेजिन करो दिमाग में एक नंबर लाइन, ठीक है, एक नंबर लाइन में 40 से 50 के बीच एक नंबर लाइन है, उसमें 40 से 50 नंबर्स लिखे हुए हैं, तो मुझे बताइए 47 की जो पोजीशन होगी वो 40 से ज्यादा पास होगी या 50 से ज्यादा पास होगी। जस्ट इमेजिन इन योर माइंड, 47 जो नंबर है वो 40 से ज्यादा पास है या 50 से ज्यादा पास है, 50 से ज्यादा पास है, ठीक है। तो राउंड ऑफ नियरेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, यहां ऐसे लिखेंगे 47 राउंडेड टू नियरेस्ट 10 इज इक्वल टू 50, ये 50 से ज्यादा नियर है। नाउ ये हो गया हमारा ए पार्ट। नाउ पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर बी इज 778, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैंने आपको क्या बताया, हमें नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है, मतलब हम सिर्फ 2 डिजिट को देखेंगे, ओके। अब मुझे बताइए 78 को देखिए, अब फिर एक इमेजिन करिए एक नंबर लाइन जिसमें 78 कहां पे आएगा स्टूडेंट्स, 70 और 80 के बीच में, ठीक है। अब मुझे बताइए 78 किसके ज्यादा पास है, 80 के या 70 के, 80 के, ठीक है।
तो 778 राउंडेड टू नियरेस्ट 10 इज इक्वल टू 780. ओके, इज इट क्लियर? कैसे सॉल्व करना है इसे? बहुत इजी है. पार्ट नंबर सी, 2634. ठीक है, हमें नियरेस्ट 10 पे इसको राउंड ऑफ करना है, तो हम 34 को देखेंगे. 34 किसके नियरेस्ट है? ठीक है, अब आप ये ऐसे स्टेटमेंट लिख लेना, मैं इक्वल टू के इधर वाला आंसर लिख रही हूँ. 34 किस किस के बीच में आएगा? पहले ये देखो, 34 आएगा 30 और 40 के बीच में. और 34 30 के ज्यादा पास होगा या 40 के ज्यादा पास होगा? 30 के पास होगा, क्योंकि 4 स्टेप्स ही आगे है वो. 40 के लिए तो वो 6 स्टेप्स आगे, तो वो 30 के नियरेस्ट होगा. तो हम लिखेंगे 2630. ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं है, राउंड ऑफ करते हैं तो हमेशा आगे की तरफ ही जाते हैं. इन दोनों नंबर्स में तो हम बड़े नंबर राउंड ऑफ कर रहे थे, यहाँ पे हम पीछे आ गए. तो आ सकते हैं स्टूडेंट्स, जहां पर पास होगा हम वहीं पर जाएंगे. नियरेस्ट बोला है तो जहां पास डिस्टेंस पास होगा हम वहीं पर जाएंगे. नाउ डी पार्ट. डी पार्ट है हमारे पास 48479. ठीक है, ये वाला नंबर है. फिर नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है, मतलब 79 है. अब 79 के नियरेस्ट किसके होगा? 80 के होगा कि 70 के होगा? 79 तो 70 और 80 के बीच में आता है, तो 79 किसके पास हो गया? 80 के. तो इसका आंसर आ जाएगा 48480. इजी ना? इट्स वेरी इजी. हमको बस ये देखना है कि आपको किसके नियरेस्ट करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. अब मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ. आप कॉपी में सिस्टमैटिकली लिखेंगे, ऐसा नहीं है मैंने डायरेक्टली लिख लिया तो आप लिखेंगे. आप ऐसे लाइन लिख के सिस्टमैटिकली लिखोगे जैसे आप फेयर कॉपी में लिखते हो. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100. हमको नियरेस्ट 100 के पे इसको राउंड ऑफ करना है. तो 100 में अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम 3 नंबर्स को ऑब्जर्व करेंगे. नाउ द फर्स्ट वन इज 230. हमें 230 को ऑब्जर्व करना है. तो 230 के लिए स्टूडेंट्स बताइए. अब 2 नंबर्स को देखिए, सॉरी 100 को राउंड ऑफ करना है तो हम 3 नंबर्स को देखेंगे. तो 230 किसके नियरेस्ट है? 230 किस किस के बीच में आएगा? 200 और 300 के बीच में. ठीक है, 200 और 300 के बीच में. तो 230 किसके पास होगा? 200 के पास होगा या 300 के पास होगा? 200 के पास होगा. तो ये इसका नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करेंगे तो ये आएगा 200. ओके. सेकेंड वन इज 997. ठीक है, अब मुझे बताइए 997 किन 2 नंबर के बीच में आएगा? 900 और 1000 के बीच में. ठीक है, अब 997 किसके पास होगा नियरेस्ट? 1000 के. ठीक है, क्योंकि 3 नंबर ही दूर है 1000 से, तो ऑब्वियसली यहीं पे जाएंगे हम. नाउ द पार्ट नंबर सी. पार्ट नंबर सी इज 37724. अब बताइए 3 नंबर्स देखिए. ठीक है, हमें सिर्फ 3 नंबर देखना है, हमें 37 से कोई मतलब नहीं है. आप सिर्फ 724 देखिए. अब मुझे बताइए 724 किसके बीच में आएगा? 700 और 800 के बीच में. ठीक है, 700 और 800 के बीच में आएगा. तो किसके पास होगा? 700 के पास होगा कि 800 के पास होगा? 700 के पास होगा, क्योंकि ये 24 ही दूर है उससे बस. तो उसका नियरेस्ट 100 कितना हो जाएगा? 37700. ओके. नाउ पार्ट नंबर डी. डी पार्ट इज 2184. 2184 है नंबर. हमें नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है तो 3 नंबर देख लेते हैं. 184 किन किन नंबर्स के बीच में आएगा? बताइए. 100 और 200 के बीच में. तो 184 200 से ज्यादा पास है या 100 से ज्यादा पास है? 200 से ज्यादा पास है. तो हम क्या करेंगे? 2200. 184 के प्लेस पे 200 लिख देंगे और ये हो गया हमारा राउंड ऑफ. ठीक है, इसे सिस्टमैटिकली आप कॉपी में कर लेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000. हमको नियरेस्ट 1000 पे इसको राउंड ऑफ करना है. तो व्हाट वी विल डू? नियरेस्ट 1000 में आप क्या करेंगे? अब हम ओरली कर लेते हैं. नियरेस्ट 1000 में हमें 4 डिजिट्स को देखना होगा स्टूडेंट्स. 4 देखिए, 10 में हमने 2 डिजिट को देखा था, 100 में हमने 3 डिजिट्स को ऑब्जर्व करा था, 1000 में हम 4 डिजिट्स को ऑब्जर्व करेंगे. सो द क्वेश्चन इज 4401. इसे हमें नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करना है. तो अब ये 4401 किसके बीच में आएगा? 4000 और 5000 के बीच में. तो ये किसके पास है स्टूडेंट्स? ये नंबर 4000 और 5000 में से किसके नियरेस्ट है? 5000 के पास तो है नहीं.
ये तो 4000 के पास है ज्यादा, तो हम इसका आंसर लिखेंगे 4000। ठीक है, क्योंकि ये 4000 से ज्यादा पास है। यहां पर देखिए 7604 ये नंबर है हमारे पास। अब ये नंबर किस किस के बीच में आएगा? 7000 और 8000 के बीच में। अब मुझे बताइए ये नंबर किसके पास होगा, 8000 के कि 7000 के? 7000 से तो ये 604 ज्यादा है, पर ये 8000 से थोड़ा ज्यादा पास है, तो हम इसे राउंड ऑफ करेंगे 8000 के। ठीक है, नाउ सी पार्ट इज 6718। 4 नंबर को ऑब्जर्व करिए, ये किसके बीच में आएगा नंबर? 6000 और 7000 के बीच में। तो किसके पास है ये ज्यादा? देखिए लास्ट नंबर 718, तो ये 7000 के ज्यादा पास है, तो हम इसे लिखेंगे 7000। इस वाले नंबर में क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 6823। अगेन 4 नंबर को ऑब्जर्व करो, किसके ज्यादा नियर है? 7000 के, तो आंसर आ जाएगा 7000। ठीक है, कर लोगे आप इजीली। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4, हमें अब नियरेस्ट 10,000 पे इसको देखना है। तो 10,000 में हम कितने डिजिट्स देखेंगे? 5 डिजिट्स देखेंगे, 1 2 3 4 5, ये पूरा नंबर हमें देखना होगा। अब मुझे बताइए 75,284 किसके पास होगा? 80,000 के। ये किसके बीच में आएगा? 70,000 और 80,000 के बीच में है ये नंबर, और ये किसके ज्यादा पास है? 80,000 के, क्योंकि ये 75,284 है, ये 80,000 से ज्यादा पास है। ये वाला नंबर किसके पास होगा बताइए? किसके बीच में आएगा? 10,000 और 20,000 के बीच में, तो ये 10,000 से ज्यादा पास है। ये वाला नंबर स्टूडेंट्स 68,000 है, तो ये किसके पास है? 70,000 के। एंड दिस वन 53,222। अब ये किस किस के बीच में आ गया? 50,000 और 60,000 के बीच में, पर ये किसके पास है ज्यादा? 50,000 के। ठीक है, क्योंकि उससे 3,000 ही ज्यादा है। ऐसे लैक वाला भी आप कर लेंगे। 5 नंबर को ऑब्जर्व करिए और लिखिए। देखिए एक मैं बता देती हूँ, बाकी आप ट्राई करिए। नंबर है हमारे पास 2,65,148। हमें इसे राउंड ऑफ करना है लैक पे। ठीक है, तो पहले ये सोच लो ये किसके बीच में आएगा? 2 लाख और 3 लाख के बीच में आएगा नंबर। तो ये किसके नियरेस्ट है? ये 3 लाख के नियरेस्ट है। 3 लाख में ये कुछ ही कम है। ठीक है, तो ये 3 लाख के नियरेस्ट है। सिमिलरली ये 5 लाख के नियरेस्ट है, क्योंकि ये 4,72,000 है। ये 5 लाख बनने ही वाला है कुछ टाइम में। ये 8,10,000 है, तो ये किसके नियरेस्ट होगा? 8 लाख के। ये 9 लाख के नहीं होगा, क्योंकि 9 लाख में तो होने में इसमें बहुत 90,000 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सिमिलरली ये वाला 26 लाख के नियरेस्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स? लिस्ट 5 नंबर्स विच कैन बी राउंडेड टू द नियरेस्ट 10 एज 330। ठीक है, आपको नियरेस्ट 10 330 के नियरेस्ट 10 5 नंबर लिखने। तो कैसे लिखेंगे बता देती हूँ मैं आपको। 6th वाला क्वेश्चन, 330 के नियरेस्ट 10, द नंबर्स विल बी। देखिए नियरेस्ट 10 बोला है, मतलब 2 नंबर देखने हैं, मतलब हमें 30 के आसपास वाले नंबर लिखने हैं। तो मुझे बताइए 30 की लाइन में कौन कौन से नंबर आएंगे? जैसे कि 325 लिख लो, 326, 327, 328, 329। ठीक है, हो गए 5 नंबर्स। हमें 5 नंबर्स ही बोले थे, तो 25, 26, 27, 28, 29। ठीक है, हमने ये भी ले लिया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एस्टिमेट द सम बाय राउंडिंग द नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। ठीक है, हमें इसे नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करके इसका सम एस्टिमेट करना है। मतलब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसमें हमें ऐड नहीं करना है, हमें पहले हर नंबर को, जैसे कि ये नंबर दिया है 362 और 482, इसमें हमें हर नंबर को पहले एस्टिमेट करना है, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 के, और फिर हमें ऐड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये वाले हम कर लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व। 7, 362 प्लस 482। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमें इसे ऐड करना है। अब मुझे बताइए 362 नियरेस्ट 100 पे इसे हमें राउंड ऑफ करना है, तो 362 का नियरेस्ट 100 क्या होगा स्टूडेंट्स? 400 है ना, 400 होगा, क्योंकि नियरेस्ट 100 देखना है, मतलब 3 डिजिट देखनी है, मतलब 362 300 और 400 के बीच में आएगा, और ये 400 से ज्यादा पास है, तो 400 प्लस, और 482 का नियरेस्ट क्या हो जाएगा? 500, क्योंकि ये नंबर 400 और 500 के बीच में आएगा, और ये 500 से ज्यादा पास है। ठीक है, और 400 प्लस 500 इज 900,
ये आंसर है हमारा, इजी है बहुत, सिर्फ राउंड ऑफ करना है, बस आप राउंड ऑफ सही करिएगा। ये ध्यान से पढ़ोगे कि नियरेस्ट क्या बोला हुआ है, ठीक है। सिमिलरली सेकंड वाला भी इजी है स्टूडेंट्स, देखिए मैं ओरली बताती हूँ आपको। 587, इसको नियरेस्ट राउंड ऑफ करो, ये क्या बन जाएगा 600। ये है 240, ये बनेगा 200। ये है 310, ये बनेगा 300। तो 600 प्लस 200 प्लस 300, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1100 स्टूडेंट्स, ठीक है। सिमिलरली सी वाला पार्ट, 207 का नियरेस्ट 100 हो जाएगा 200, 131 का 100 और 248 का 200। तो इन्हें ऐड करोगे 200 प्लस 100 प्लस 200 विल बी 500। सिमिलरली डी वाला पार्ट, 398 का नियरेस्ट 100 हो जाएगा 400, 4392 का हो जाएगा 4000। तो 4000 प्लस 400 विल बी 4800। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अब जैसे हमने प्लस किया है स्टूडेंट्स, वैसे ही हमें डिफरेंस करना है, मतलब माइनस करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखिए नियरेस्ट 100 पे ही हमें एस्टिमेट करना है। दैट मीन्स 483 का क्या हो जाएगा नियरेस्ट 100, 490, देन 266 का 300। तो 490 माइनस 300 विल बी, सॉरी दिस विल बी 500, 500 माइनस 300, इसका नियरेस्ट 500 क्योंकि हमें 100 के अलॉन्ग इसे राउंड ऑफ करना है। दिस विल बी 500 minus 300, it will be 200. Like this you have to round off the numbers. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप कर लोगे इजीली, आई थिंक अब आप कर सकते हो। ऐसे ही आप प्रोडक्ट भी करोगे। अब प्रोडक्ट में आपको स्टूडेंट्स नियरेस्ट 10 पे करना है, तो याद रखिएगा सिर्फ 2 डिजिट्स देखोगे। यहाँ पे 13 है तो ये नियरेस्ट 10 पे क्या राउंड ऑफ होगा 10, ये 10 के ज्यादा पास है और ये 30 के ज्यादा पास है, तो 10 into 30 विल बी 300, ठीक है। और इसे करोगे तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 200, ठीक है। और फिर इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 मैं करा देती हूँ, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन में लिखा है अ शॉपकीपर हैज 2345 kg ऑफ सॉल्ट. He sells 45 kg of salt every day. Estimate how much salt is left after 10 days of sale. ठीक है, हमें क्या करना है, क्वेश्चन पहले समझ लो। क्वेश्चन में लिखा है कि एक शॉपकीपर है जिसके पास इतने केजी सॉल्ट है, 2345 kg ऑफ सॉल्ट उसके पास है। He sells 45 kg ऑफ सॉल्ट एवरी डे, वो 45 kg सॉल्ट रोज सेल करता है, ठीक है। हमें एस्टिमेट करना है हाउ मच सॉल्ट इज लेफ्ट आफ्टर 10 डेज ऑफ सेल। अगर उसने 10 दिन तक इतना सॉल्ट बेचा है तो उसके पास कितना सॉल्ट बचेगा, बट हमें एस्टिमेट करना है नियरेस्ट 10 के। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, हम इसका भी नियरेस्ट लिखेंगे, इसका भी नियरेस्ट लिखेंगे और फिर निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, एस्टिमेटेड क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट। शॉपकीपर के पास कितनी एस्टिमेटेड क्वांटिटी है, देखिए नियरेस्ट 10 पे इसको राउंड ऑफ करो, नंबर है हमारे पास 2345। 2345 का नियरेस्ट क्या होगा बेटा, ये 10 है यहाँ पर, तो लास्ट 2 नंबर देखो 45, 45 के नियरेस्ट कितना होता है 50, तो हम लिखेंगे 2350 kg, इतना उसके पास एस्टिमेटेड हो गया, ठीक है, इतना सॉल्ट उसके पास है। अब वो रोज कितना सेल करता है 45, तो हम कितना लिखेंगे एस्टिमेटेड सेल पर डे। एक दिन में कितना एस्टिमेटेड सेल होता है, हम इसको 50 kg मान लेते हैं, ठीक है, 45 है तो 50 kg मान लेते हैं। वैसे ये 45 जो है वो 40 के भी उतना ही नियर है जितना 50 के है, पर हम 50 लेते हैं क्योंकि वो कैलकुलेशन में हमारा इजी हो जाता है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है 10 डेज तक ये उसने ये सॉल्ट सेल करा है, ठीक है, 10 डेज तक। तो इन 10 डेज सॉल्ट सोल्ड विल बी, कितना सॉल्ट बेचा जाएगा 50 kg, एक दिन में बेच रहे हैं तो 10 दिन में 500 kg सेल करेंगे, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितना सॉल्ट इसमें बचा, एस्टिमेट हाउ मच सॉल्ट इज लेफ्ट। सो एस्टिमेटेड सॉल्ट लेफ्ट इज इक्वल टू, कितना सॉल्ट बचेगा बेटा, देखिए कितना आया, सबसे पहले हमारे पास
2350 उसके पास एस्टिमेटेड था, उसमें से उसने 500 को इतना सेल कर दिया, तो कितना बचेगा, इसे माइनस कर लेते हैं। 2350 माइनस 500, 0 5 देन 8 देन 1, 1850 उसके पास सॉल्ट बचेगा। ओके, ये एस्टिमेटेड है, ये आंसर करेक्ट नहीं है। अगर आपको करेक्ट आंसर निकालना है तो आप इसी को इससे 45 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 450 आएगा। फिर ये 2345 को 450 से माइनस करोगे, फिर उसका एक्चुअल आंसर आएगा। पर वो कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और ये एस्टिमेटेड करके हमें ओरली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई है, इसे भी आप कंप्लीट करेंगे। तो कल का आपका होमवर्क क्या है, आपको 1.1 और 1.2 को कंप्लीट करना है। ठीक है, इसकी जो रिकैप एक्सरसाइज है वो मैं बाद में आपको स्टूडेंट्स वर्कशीट बना के दूंगी, आपको अभी इसको सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ 1.1 और 1.2 तक कंप्लीट करना है ट्यूसडे तक। ठीक है, इज इट क्लियर? फेयर कॉपी में आप कंप्लीट करेंगे इसे। ठीक है, और फिर रोमन न्यूमरल्स वाली देखिए एक्सरसाइज 1.3 भी बहुत ईजी है, आप इसे भी ट्राई करिए सॉल्व करने का। जिससे हो रहा है वो कर सकता है क्वेश्चन, जिससे नहीं हो रहा है आप मुझे डाउट बताएंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे को जब मैं क्लास लूंगी तो हम इसे डिस्कस कर लेंगे, मैं इसके आंसर की आपको बता दूंगी। ठीक है, तो आप कोशिश करिए, ये भी हम कर चुके हैं स्टूडेंट्स, रोमन नंबर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये आप एक्सरसाइज ट्राई करिए सॉल्व करने की, जितने हो रहे उतने करिए, और जितने नहीं हो रहे मुझे डाउट बताइए, फिर हम उसके आंसर्स डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, हम इतना स्पीडली इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक तरीके से ये आपका रिवीजन है। ठीक है, तो ये आपको चीजें रिवाइज हो रही है वापस से, हम ये चीजें पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा स्पीडली ले रहे हैं इसे, और थोड़ा स्पीडली ही लेंगे ताकि हम आगे चल के अपना सिलेबस और आगे बढ़ाएं। ठीक है, अंडरस्टूड? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।